हमारे जोशीले उसामा। Salam, namaste, sat sri akal, adab. Good afternoon, each and every individual present over here. And also a very warm welcome to all the viewers who are watching this game, who are watching this tournament live on 7070, who is our broadcast partner. Today it's the second day of 10PL Season 3 here at Sharjah International Cricket Stadium. Beautifully played this time towards the long off area. Fielder coming underneath it and a magnificent catch. A blinder taken at the long off. What a catch. Vijay Pawar. This is not a name, it's a brand, bro. What a catch. A magnificent one to dismiss. The opening batsman, Sumit, walks back to the pavilion. First wicket down for SJA Shipping. A 10PL Season 3 here at Sharjah International Cricket Stadium. Dreams are coming true for the youngsters, for the youth who actually wanted to play for their nation on an international stage. Yes, it is a platform where you can live your dream, where you can make your dreams come true. And what a magnificent opportunity this has been given by Petroman Events through 10PL Season 3. Dombivli Grameen Stars taking on SJA Shipping. Dombivli have won the toss. Elected to field first. Beautiful delivery as well played it to the mid-wicket area. Fielders coming over there. 2 runs definitely would be saved on that occasion. 2 more runs added to the scorecard. Straight away off the mark. Shahid. This will really turning out to be a great contest. Dombivli Grameen Stars taking on SJA Shipping here at Sharjah Cricket Stadium. Nicely bowled this time. Just plays it down towards the mid-wicket area, just 1 run to be taken on that occasion. 10 Premier League Season 3 presented by Petroman Events at Sharjah International Cricket Stadium. I also would like to take the opportunity to thank the sponsors, the official sponsors of this event, because each and every single time you organize an event, the major part played by the sponsors. Thank you each and every one for showing your extraordinary support to make this event a grand, successful and a memorable one. Yes, indeed. A beautiful ball as well played it to the square leg area, but there's a fielder, there's a protection out there. Just 2 runs to be taken on that occasion, and Vishwanath straight off the mark on his very first ball. Yes, I would like to thank 10PL Season 3 official sponsors, starting off with Petroman, title sponsor. Also would like to include Sharjah Cricket Stadium, who is the venue partner, followed by Ikraft Media, digital partner. Delhi Darbar for extremely delicious food and beverages. This time opened the face of the bat and lofted it towards the extra cover area.
No chance was any fielder to stop that one. He is playing a magnificent innings here. 4 more runs added to the scorecard. End of the over after the completion of first over. Score goes to 10 for the loss of 1 wicket. Well, Aslam just informed me that Hashmi CC and UKCC Kuwait are through to the quarterfinals. Thank you. Huge congratulations to both the teams, Hashmi CC and UKCC Kuwait, to making it through. Yeah, I was talking about these official sponsors here. Continuing with Delhi Darbar, FNB partner, WBT Tech Timbers support sponsor, followed by Gulf International support sponsors, Global Computers support sponsors, Area and Hygiene Guard support sponsors, OOK kitting partner, travel partner is Air Arabia, beverager partner is Meltwater. Superbly timed this time towards the square leg area. The new bowler comes in, Sultan Khan, with his spells first and the team's second over in progress from Sharjah Cricket Stadium. Live streaming partner, I would like to thank Tarif Syed, who has been magnificent throughout. Got a thick outside edge towards the short third man area. 1 run to be considered on that occasion. And the entire team of 70-70 for giving us the best visuals of 10PL Season 3. And last but not the least, Tools Macro Private Limited, creative partner. Short pitch delivery this time. He will not miss that particular one. Played it over to the fine leg area. 4 more runs added to the scorecard and also to the individual score of Shahid. Friends Kuwait and 11 Warriors Dubai. Friends Kuwait and 11 Warriors Dubai to report for the photo shoot. Thank you. Shahid Sheikh, he's on strike now. Short pitch delivery this time. The fielder coming underneath it and a easy catch into the safe hands. A breakthrough given by Sultan Khan, the swing of the king of swing, Sultan Khan. That was a magnificent delivery. Pitch it over to the Goodland spot. Batsman wanted to pull it over to the mid-wicket area, just founded the top edge. And a easy catch into the safe hands. Manoj Doshi. Shahid Sheikh departed to the pavilion. There you go, right on your screens, the big game, exhibition game which is upcoming tonight. India versus Pakistan. Ankur Singh leading for India as a captain. Omkar Desai will be the vice captain. Shiraz Ahmed, the captain for Pakistan. Zahir Kalia, he's going to be the vice captain. Please plan your schedules because this is something which will you not be able to see each and every day. Once in a while, once in a blue moon, this happens. Short pitch delivery again, this time just placed it towards the point area. Just 1 run to be taken and he's straight off the mark.
सुनील। Short pitch delivery again, this time outside the off stump, wanted to touch it down, but he was very fortunate on that occasion that the ball hasn't carried the outside edge, or else he would have taken a walk back towards the pavilion. A dot ball to end the over after the completion of 2 overs. Score goes to 17 for the loss of 2 big wickets. Shahid Sheikh and Sumit. आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा 10 प्रीमियर लीग सीजन 3 शारजाह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदान पर ये मुकाबले होते हुए, और शारजाह अंतरराष्ट्रीय मैदान जो कि प्रसिद्ध है अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, जो कि 240 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचेस को इस स्टेडियम ने होस्ट किया है, और काफी बड़े दिग्गज प्लेयर्स ने यहां पर अपने गेंदबाजी और बल्लेबाजी के जौहर बिखेरे हैं, चाहे वो ब्रायन लारा हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, या फिर वो हो सुल्तान ऑफ स्विंग वसीम अकरम। और ये काफी भाग्यशाली हैं ये सारे खिलाड़ी जिन्हें ये मौका मिला है कि ये इस ग्राउंड पर अपने जलवे बिखेरें, अपना योगदान दें अपनी अपनी टीमों के लिए। और ये सारे सपनों को साकार किया है पेट्रोमैन इवेंट्स ने 10 प्रीमियर लीग के जरिए। शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल किया उसे मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर जरूर मौजूद है वहां पर, एक ही रन मिलेगा, लेकिन बहुत ही उम्दा फील्डिंग। विजय पवार एक बार फिर से एक्शन में नजर आते हुए, बहुत ही अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। एक बड़ी साझेदारी की अपेक्षा जरूर करती होगी यहां पर एसजे शिपिंग इन दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से। वे एक छोर पर है विश्वनाथ, तो दूसरे छोर पर सुनील। 18 रन पर 2 विकेटें अभी तक गवा चुकी है एसजे शिपिंग्स। यदि एक अच्छा स्कोर करना है तो निश्चित रूप से ये दोनों का क्रीज पर जमे रहना बहुत जरूरी। अच्छी गेंद खेला उसे, कलाइयों का उपयोग किया, ढीली कलाइयों के साथ खेला। शॉर्ट कवर्स के क्षेत्र में विजय पवार के पास गेंद है, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा विश्वनाथ को। मैं निवेदन करना चाहूंगा फ्रेंड्स कुवैत के कप्तान, साथ ही साथ 11 वॉरियर्स दुबई के कप्तान से जल्द कमेंट्री बॉक्स पर आएं और रिपोर्ट करें। सीधे जड़ में मारी हुई गेंद, ये बहुत ही बढ़िया खेला उसे, एक रन निश्चित रूप से मिलेगा सुनील को। बढ़िया गेंद, उठाकर खेलने का प्रयास, गैप में तो जरूर गई थी गेंद, लेकिन वहां पर चुस्त फुर्तीले खिलाड़ी विजय पवार मौजूद है, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा इस मौके पर भी विश्वनाथ को। एड़ी चोटी का जोर जरूर लगा रहे हैं बाउंड्रीज ढूंढने के लिए यहां पर, लेकिन जहां कहीं भी देख रहे हैं वहां पर विजय पवार नजर आ रहे हैं।
10 Premier League Season 3. प्रीमियर लीग सीजन 3 शारजाह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदान पर होता हुआ, और साथ ही साथ इन सभी मैचों के साथ एक बहुत ही बड़ा मैच लेकर आपके सामने हाजिर होने वाले हैं आज रात को। जी हाँ, मैं उस मुकाबले की बात कर रहा हूं जहां पर गेंद निकलेगी इस्लामाबाद से तो बल्ला घूमेगा नई दिल्ली का। जहां पर गेंदबाज आएंगे हिंदुस्तान से अपने गेंदबाजी के जौहर बताने के लिए, तो बल्लेबाज भी अपने हुनर बिखेरेंगे पाकिस्तान के। जी हाँ, मैं उस कड़े मुकाबले की बात कर रहा हूं, उस बड़े मुकाबले की बात कर रहा हूं जिसका इंतजार दर्शकों को सालों साल से हो रहा है। और यह इतिहास में पहली बार हिंदुस्तान की टेनिस बॉल क्रिकेट टीम भिड़ेगी पाकिस्तान की टेनिस बॉल क्रिकेट टीम के साथ शारजाह अंतरराष्ट्रीय मैदान पर। जी हां, आप सभी से कहना चाहूंगा कि अपने अपनी टाइमिंग को देख लीजिएगा, शेड्यूल को बना लीजिएगा, स्नैक्स वगैरह सारे लेकर तैयार रहिएगा। 8:30 बजे हम आएंगे आपके सामने सीधा प्रसारण लेकर, हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान। देख सकते हैं आप स्क्वाड्स हिंदुस्तान और पाकिस्तान के। अंकुर सिंह लीड करेंगे हिंदुस्तान को, उप कप्तान रहेंगे ओमकार देसाई, थॉमस दयास, मोयुद्दीन शेख, कृष्णा सातपुते, उस्मान पटेल, सुमित ढेकाले, योगेश पेनकर, अजीत मोहिते, दिनेश नकरानी, सरोज, विश्वजीत तकूर, जाफर जमाल, विजय पावले, सुल्तान खान, भरत लोहार होंगे कोच हिंदुस्तान के। साथ ही साथ मैनेजर होंगे जावेद शेख। और वापस चलते हैं पाकिस्तान की ओर। चिराज अहमद कप्तान और जहीर कालिया होंगे उप कप्तान। मुबशर अहमद, फहीमुल्लाह शाह, करीम खान, वाजिद खान, इरफान, सद्दाम शाह, समीउल्लाह, उस्मान पेसर, जलत खान, कर्नल जाहिद, शहबाज अहमद, नादिर, सैयद मकसूद। और यहां पर कोच होंगे आसिफ मुमताज, साथ ही साथ उस्मान मंजूर होंगे मैनेजर। टेन प्रीमियर लीग सीजन 3। अमय फोटोग्राफर अमय से मैं गुजारिश करता हूं कि फोटोशूट के लिए एक बार अपनी नजर दौड़ाएं यहां। फ्रेंड्स कुवैत से भी मैं गुजारिश करता हूं कि फोटोशूट के लिए आए यहां पर। बढ़िया गेंद ढीली कलाइयों के साथ दिशा दिखाई हुई से गली रीजन पर फील्डर मौजूद, वहां पर चुस्त फुर्तीले खिलाड़ी, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। छोटी गेंद, पटकी हुई गेंद थी और बहुत ही बढ़िया गति के साथ निकली। बड़ा शॉट तो लगाना चाहते थे विश्वनाथ, लेकिन चूके पूरी तरीके से और लैंड कर गई विकेट कीपर के दस्तानों में।
इसी डॉट बॉल के साथ ओवर होता हुआ समाप्त, तीसरे ओवर की समाप्ति पर 22 पहुंचा एसजे शिपिंग का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। फ्रेंड्स कुवैत, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि फोटोशूट के लिए आए। आपसे निवेदन है कि फोटोशूट के लिए आए यहां पर। फ्रेंड्स कुवैत की पूरी टीम से मैं गुजारिश करता हूं। मैं बताता चलूं कंपायर्स को कि 35 मिनट में 8 ओवर हमको करना होगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनिंग्स को समाप्त कीजिएगा और प्लेयर्स से भी कोऑपरेशन चाहते हैं। बोलो। गेंदबाजी में परिवर्तन, विवेक को गेंद थमाई है कप्तान ने। आएंगे शारजा क्रिकेट स्टेडियम एंड से अपने खाते का पहला और टीम का चौथा ओवर लेकर। सामना करेंगे सुनील। बहुत ही बढ़िया शुरुआत विवेक द्वारा। एक और शॉर्ट पिच गेंद, इस बार पढ़ लिया था बल्लेबाज ने, खेल दिया उसे मिड विकेट के क्षेत्र में। 4 रन। उसी तरीके की गेंद थी जो पिछली बार की थी विवेक ने, लेकिन इस बार भांप लिया बल्लेबाज ने और लगा दिया चौका। सुनील। हवा में गेंद, नीचे फील्डर मौजूद और एक कैच लेंगे वहां मनोज जोशी। बहुत ही बढ़िया जजमेंट, नजरें जमाई रखी अपनी चील की तरह और ले गई विकेट सुनील की। शॉर्ट पिच गेंद, एक बार फिर से मौका बना वहां पर और इस मौके को नहीं छोड़ेंगे ये खिलाड़ी मनोज जोशी। एक बार फिर से जहां जाए मनोज, जहां जाए मनोज। वही गेंदबाज, वही है खिलाड़ी फील्डर पर, लेकिन चेंज हुए हैं बल्लेबाज।
दो गेंदों में दो सफलताएं विवेक के नाम। ये देखिए किस तरीके की छोटी गेंद की थी, फुल शॉट लगाने का प्रयास, बाहरी किनारा लगा और लैंड कर गई सीधे मनोज जोशी के दस्तानों में। विवेक के आंकड़े देखिएगा, 4 गेंदों में 4 रन दिए हैं, 2 सफलताएं अपनी नाम की है इस युवा खिलाड़ी ने। दो विकेटें अभी तक बैक टू बैक ले चुके हैं विवेक, और यहां पर है बारी हैट्रिक की। क्या ये हो सकती है पहली हैट्रिक 10 प्रीमियर लीग सीजन 3 शारजाह अंतरराष्ट्रीय मैदान पर? सभी दर्शकों की हार्ट बीट तेज होती हुई यहां सीधे पैड पर लगती हुई। हल्की सी अपील जरूर थी लेकिन कुछ प्रभाव नहीं अंपायर पर। लेग बाय का इशारा दिया अंपायर ने। एक और रन की बढ़ोतरी होती हुई स्कोर कार्ड में 27 पर पहुंचा स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद इस ओवर की। बढ़िया गेंद, एक बार फिर से छोटी गेंद पटकी हुई, गति ज्यादा नहीं इसमें लेकिन आसानी के साथ खेल लिया से मिड विकेट के क्षेत्र पर। 1 रन जरूर मिलेगा बल्लेबाज को। इसी 1 रन के साथ ओवर हुआ समाप्त। 28 पर पहुंचा एसजे शिपिंग का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के लिए। अंपायर का इशारा। बहुत बहुत शुक्रिया। अफजल मखदूम अगर मैदान में है, पेट्रोमैन के अफजल मखदूम।
वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है शारजा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 10PL सीजन 3। आज प्रतियोगिता का दूसरे दिन का ये चौथा मुकाबला। टॉस यहां पर जीता था डोंबिवली ग्रामीण स्टार के कप्तान ने फील्डिंग करने का फैसला। फुल टॉस गेंद, सही नसीहत, बल्ले के बीचों बीच गेंद आउट ऑफ द पार्क। यूजेड 6, 10PL सिक्सर। जयेश पाटिल, मैन फ्रॉम भिवंडी, फुल टॉस गेंद थी, सही दिशा इस बार दिखाते हुए इस गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जयेश पाटिल के बल्ले से। सुल्तान, शॉर्ट गेंद थी इस बार, पॉइंट में गेंद हवा में, और इसी के साथ यहां पर जाना होगा पेविलियन की ओर जयेश पाटिल को। बैकवर्ड पॉइंट में क्या कैच यहां पर लपका, तुषार पाटिल थे वहां पर खिलाड़ी, और यहां पर टीम को 5वां झटका लगता हुआ SJA ग्रुप ऑफ कंपनीज को। बेहतरीन गेंदबाजी और बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहिरा। टीम डोंबिवली ग्रामीण स्टार एक अलग रंग में नजर आती हुई कुणाल जी आज। मैं प्रशंसा करूंगा सुल्तान खान की। पहली गेंद पर छक्का जड़ा था बल्लेबाज जयेश पाटिल ने, लेकिन उसके दूसरी ही गेंद पर पलटवार करता हुआ सुल्तान का ये ओवर, 2 झटके सुल्तान ने दिए टीम SJA शिपिंग को इस मैच में। डोंबिवली ग्रामीण स्टार की ओर से खेलते हुए, अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस बार नए बल्लेबाज आसिफ शेख, जो पूना के खिलाड़ी है, काफी लंबे ऊंचे कद के ऑलराउंडर खिलाड़ी आतिश केदारे इनके साथ में खेलते नजर आएंगे। लेकिन चुनौतियां काफी बड़ी होगी इस मुकाबले में, क्योंकि यह मुकाबला काफी अहम दोनों टीमों के लिए, जीत काफी जरूरी, और उसी का प्रयास यहां पर दोनों टीमें करती नजर आएगी। आज थोड़ा सा निराश किया सुमित ढेकले ने, उसके बाद शाहिद ने एक चौका लगाया था अपने टीम की ओर से, विश्वनाथ के बल्ले से एक चौका, जयेश पाटिल इनके बल्ले से एक छक्का। अच्छा स्ट्रोक बल्ले के बीचों बीच, इस बार गेंद ट्रैवल होती हुई बाउंड्री लाइन की ओर, 2 रन यहां से जुड़ेंगे बल्लेबाज आसिफ के खाते में। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 36। सुल्तान बेहतरीन गेंदबाज है, विकेटों के दोनों तरफ गेंद स्विंग करने में माहिर है, और आज भी उसी तरह की गेंदबाजी करते हुए कुणाल। अच्छी गेंद और कवर्स में खेल दिया इस गेंद को, स्वीपर कवर्स के खिलाड़ी वहां पर मौजूद, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज आसिफ को। आसिफ सिंगल के साथ इस बार स्ट्राइक को रोटेट करेंगे। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 37, 5 विकेट के नुकसान पर आतिश केदार एक आक्रामक कबू बल्लेबाज, रनों की तलाश में हमेशा से रहते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग प्रयास करना होगा, क्योंकि काफी ज्यादा विकेटें खो चुकी है टीम SJA शिपिंग इस मैच में। पारी का ये 5वां ओवर चलता हुआ, एक्स्ट्रा कवर पर डीप में खिलाड़ी मौजूद, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, मिड विकेट स्क्वायर लेग, दायरे के बाहर, दायरे के अंदर इस बार शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट और कवर पॉइंट में फील्ड प्लेसमेंट। सुल्तान करेंगे इस ओवर की ये अगली गेंद, फेस करेंगे बल्लेबाज आतिश केदारे और द विकेट से। सीधा बल्ले से खेल दिया, प्रॉपर टाइमिंग, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए ये आता हुआ 10PL सिक्सर, बल्लेबाज आतिशेंद्र बाहुबली के बल्ले से। बैट के रडार में गेंद थी, और इसीलिए जाने जाते हैं आतिश केदारे। खार मुंबई के खिलाड़ी है, लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए, और अपने रंग में आते हुए आतिश केदारे एक बड़ा छक्का। एज एंड विकेट कीपर के पीछे इस बार गेंद ट्रैवल होती हुई, लेकिन क्या बढ़िया प्रयास वहां पर विकेट कीपर ने किया था। साई शेलार, जो अर्नोल्ड ऑफ टेनिस क्रिकेट इस नाम से जाने जाते, बेहतरीन ने यहां पर प्रयास किया था, लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटकी। एक्शन रिप्ले आपकी इस स्क्रीन पर।
स्ट्रेच किया था साई शेलार ने, लेकिन इस बार पूरी तरह से चूके और यहां से 5वां ओवर समाप्त होता हुआ 43 लॉस ऑफ 5 विकेट टीम SJA शिपिंग। अच्छी गेंदबाजी अब तक देखने मिली है। 5 विकेट पेविलियन की तरफ जा चुके हैं। इसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी डोंबिवली ग्रामीण स्टार को। और मगर दूसरी तरफ आतिश केदारे और आसिफ शेख, इनको अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी जरूर करनी होगी, क्योंकि मुसीबत में थोड़ी टीम तो जरूर है और आगे अच्छी बैटिंग करेंगे तो एक अच्छा टारगेट सेट हो सकता है। चलिए, डोंबिवली ग्रामीण स्टार महज 35 मिनट आपको मिलेंगे इस पारी को समाप्त करने के लिए, तो मैं कहूंगा, आपको गुजारिश करूंगा कि टीम मीटिंग ज्यादा से ज्यादा ना लेवे। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 43, 5 विकेट के नुकसान पर टीम डोंबिवली ग्रामीण स्टार के खिलाफ खेलते हुए टीम SJA शिपिंग। इस बार फार एंड से गेंदबाजी करते नजर आएंगे विवेक शेलार, बर्थडे बॉय, जिनका आज जन्मदिन है। अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, क्या अपनी बर्थडे का गिफ्ट ये टीम को देंगे इस मैच को जीतकर? इससे पहले वाली ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी विवेक शेलार ने, महज 5 रन उस ओवर में उन्होंने खर्चे थे, 2 विकेट उनके खाते में। वही गेंदबाज विवेक शेलार इस बार ये पारी का छठा ओवर लेकर, अच्छा बाउंस विवेक शेलार को, टप्पा खाकर गेंद उछली सीधा विकेट कीपर के हाथों में। साई शेलार इसी तरह की गेंदबाजी करते हैं विवेक शेलार, वेरिएशन रखते हैं, हर एक गेंद अलग अलग टप्पे पे रखने की कोशिश भी करते हैं। जी हाँ, अच्छी गेंदबाज है विवेक शेलार। पटकी हुई गेंद थी, पुल कर दिया इस गेंद को, गेंद हवा में, वहां पर खिलाड़ी काफी तेजी से आते हुए गेंद की तरफ और 2 रन यहां से जोड़ते हुए बल्लेबाज आसिफ के खाते में। अच्छा टेम्परामेंट दिखाते हुए आसिफ इस मैच में, इस मुकाबले में, उन्हें पता है क्योंकि विकेटें ज्यादा खोई है टीम SJA शिपिंग ने इस मैच में टीम डोंबिवली ग्रामीण स्टार के खिलाफ। दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला जीतना काफी जरूरी होगा 10PL के इस सीजन 3 में। आज दूसरे दिन का ये चौथा मुकाबला आपके सामने, फ्रेंड्स कुवैत उनके खिलाफ 11 वॉरियर्स दुबई। नेक्स्ट मैच और पहली इनिंग के समाप्ति के बाद होगा टॉस हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में। फ्रेंड्स कुवैत उनके खिलाफ खेलते नजर आएगी टीम 11 वॉरियर्स दुबई। ये चले गेंदबाज विवेक, अच्छी गेंद, टप्पा खाकर गेंद में फिर से एक बार उछाल नजर आता हुआ, बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई इस ओवर में। ओवर नंबर 6 यहां पर चलता हुआ, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को बाहर की तरफ जाती हुई गेंद कंप्लीटली बीट किया बल्लेबाज को विवेक शेलार ने। लोअर फुल टॉस गेंद ऑन साइड में ऑन ड्राइव यहां पर पेश किया बल्लेबाज आसिफ ने। 1 रन दूसरे की तलाश और यहां पर पूरी जरूर होगी, 2 रन यहां पर जुड़ते हुए बल्लेबाज आसिफ के खाते में। लेकिन मैं कहूंगा आसिफ एक सेंसिबल इनिंग यहां पर पेश करते हुए, उनके साथ आतिश केदारे जो आक्रामक तेवर में बल्लेबाजी हमेशा से करते हैं, उनके बल्ले से एक लंबा छक्का उन्होंने लगाया था। गेंदबाज उस सुल्तान इनकी गेंदबाजी पर शॉर्ट बॉल हुक करना चाह रहे थे, इस बार बाउंस ज्यादा मिलता हुआ, अंपायर का सिग्नल आता हुआ, ये वाइड गेंद। पटकी हुई गेंद थी। चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, स्वीप करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद विकेटों के पीछे, विकेट कीपर के पीछे शॉर्ट फाइन लेग पर इस गेंद को पकड़ा गया वहां के खिलाड़ी पिंट्या जोशी। आज अच्छा क्षेत्र रक्षण किया पिंट्या जोशी ने, 2 कैचेस लिए अपनी टीम के लिए। वो इन एक्शन यहां पर नजर आते हुए ओवर नंबर 6 का खेल यहां से चलता हुआ। गेंदबाज विवेक शेलार जिनका आज जन्मदिन है, बेहतरीन ओवर यहां पर पेश किया था। इसके पिछले वाले ओवर में उन्होंने 2 सफलता अपनी टीम के लिए दर्ज की थी इस मुकाबले में। वही गेंदबाज विवेक शेलार जो खालिंग भिवंडी से बिलोंग करते हैं, ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग,
दायरे के अंदर चेंज ऑफ पेस, अंपायर की ओर अपील और इस बार एलबीडब्ल्यू पगबादा के रूप में बैट्समैन आउट होंगे। आतिश केदारे बैक टू द पेविलियन। और एक झटका लगता हुआ वेरिएशन इस बार भी था, मगर बॉल को थोड़ा सा धीमी गति से रखा था, बॉल को घुमाया और सीधा पैरों से टकराया ये बॉल और पगबादा लेग बिफोर विकेट। तो आतिश केदारे को यहां पर जाना होगा पेविलियन की ओर, डगआउट की ओर। 49 रनों पर यह छठा झटका लगता हुआ टीम एसजे शिपिंग को। 6 ओवरों का खेल समाप्त होता हुआ तीसरी सफलता विवेक शेलार को। मैंने पहले कहा था आज अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए अपने टीम की ओर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे कमेंट्री बॉक्स और उसी के साथ पेट्रोमैन इवेंट्स द्वारा आपको विवेक शेलार इस प्रतियोगिता के आयोजनकर्ता मिस्टर आरिफ खान सर, इनके द्वारा आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। विवेक शेलार अच्छी गेंदबाजी की, 2 ओवर में महज 11 रन 3 विकेट उन्होंने चटकाया अपनी टीम के लिए। तो आइए चलते दोनों महाराष्ट्र की टीम एक मराठी तडका लेकर इस मॅच में। स्वागत आहे शारजा इंटरनॅशनल स्टेडियम मध्ये तुम्हा सर्वांचं, जे प्रेक्षक आमच्यावर जोडले तर युट्यूबच्या माध्यमातून 70-70 या वाहिनीवर। मॅच आहे टीम एसजे कंपनीज आणि त्यांच्या विरुद्ध डोंबिवली ग्रामीण स्टार मध्ये। टॉस इथे जिंकलं डोंबिवली ग्रामीण स्टार चे कॅप्टन आणि फिल्डिंग करण्याचा निर्णय या मॅच मध्ये घेण्यात आला होता। 49 रन स्कोरबोर्डवर आहेत, 6 विकेटचं नुकसान टीम एसजे ग्रुप ऑफ कंपनीज। ओव्हर नंबर 7 मध्ये बॉलिंग करण्यासाठी केतन मात्रे, जो वाकलन के खिलाड़ी है, काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस पिछले सीजन में रहा था इस केतन का, आणि आता तोच बॉलिंग करताना दिसेल या मॅच मध्ये। राउंड विकेट, चांगला स्ट्रोक ऑन साइडला, बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, इट्स मॅक्सिमम षटकार। पेट्रोमॅन सिक्सर। चांगला स्ट्रोक आसिफ शेखच्या बॅट मधून, रडार मध्ये बॉल ऑन साइडला, वाइडिश लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, 6 रनसाठी षटकार येतोय। चांगलं टायमिंग, 10 PL सिक्सर। रन झाले स्कोर बोर्डवर आता 55 6 विकेटचं नुकसान। डोंबिवली ग्रामीण स्टार प्रत्येक गावातून एक एक खेळाडू या टीम मध्ये खेळताना दिसतोय। शारजा इंटरनॅशनल स्टेडियम मध्ये एक स्वप्न त्यांचं पूर्ण झालं। ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष विनोद रतन पाटील आणि संपूर्ण त्यांचे पाठीराखे या स्पर्धेच्या माध्यमातून हे खेळाडू आज शारजा इंटरनॅशनल स्टेडियम मध्ये खेळत आहेत। हे त्यांचं महत्भाग्य। ऑन साइडला अलॉंग द कार्पेट खेळून काढला हा स्ट्रोक, वाइडिश लॉंग ऑनला पुन्हा एकदा थोडंसं फंबलिंग, त्याचा फायदा इथे नाही मिळणार। चांगला थ्रो सरळ विकेट कीपरच्या हातामध्ये, 1 रन इथे ऍड होईल टीमच्या टोटल मध्ये। धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 56 लॉस ऑफ 6 विकेट, 6 विकेटचं नुकसान टीम एसजे शिपिंग या मॅच मध्ये। 8 ओव्हरचा हा सामना, खूप महत्वाची मॅच दोन्ही टीमच्या दृष्टिकोनातून। 10 PL मध्ये आपला 1 तुम्हाला कायम ठेवायचं असेल तर ही मॅच जिंकणं खूप महत्वाचे आहे, कारण दोन्ही टीमने एक एक सामना गमावलाय। अतिशय महत्वाचा सामना आहे डोंबिवली ग्रामीण स्टार साठी, तेवढाच महत्वाचा सामना आहे टीम एसजे शिपिंग स्टार या टीम साठी। बॉलर केतन मात्रे, राईट राउंड विकेट। समोर खेळण्याचा प्रयत्न, मिड ऑफला फिल्डर नाही, स्वतः केतन बॉलच्या मागे, आणखीन एक झटका बसतोय टीम किशन देवेंद्र बॅक टू द पॅव्हिलियन।
चांगली बॉलिंग केतन मात्रेची पहिल्या षटकाराचं प्रत्युत्तर विकेट घेऊन या ओव्हरमध्ये देत असताना आसिफ शेखने त्याच्या विरुद्ध षटकार ठोकला होता, परंतु किशन देवेंद्रची विकेट त्याच्या खात्यामध्ये नक्की असेल. 7 रन त्यांनी आतापर्यंत खर्च केलेत आणि 1 विकेट त्याच्या खात्यामध्ये. 7 विकेट गमावले तर टीम HJA शिपिंगने या मॅच मध्ये 56 रनवर 12 रनच्या प्रति रन रेटने या मॅच मध्ये रन केले तर 74 पर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न नक्की इथे होईल आणि तो एक फायटिंग स्कोर इथे निर्माण होईल. नवीन बॅट्समन आता ग्राउंडवर जात असताना गुरविंदर, मॅन फ्रॉम पंजाब. भारताच्या प्रत्येक वेगवेगळ्या देशाच्या कानाकोपऱ्यातून इथे खेळाडू खेळण्यासाठी आलेत या शारजा इंटरनॅशनल स्टेडियम मध्ये आणि हे त्यांचं स्वप्न पेट्रोमॅन इव्हेंट्स आणि आमच्या आरिफ खान सर यांच्या माध्यमातून स्वप्न पूर्ण झालंय. या टेनिस बॉल क्रिकेटच्या महासंग्रामामध्ये 10PL मध्ये आपण आहोत 3ऱ्या पर्वामध्ये आणि आता 1च रन मिळेल बॅटिंग करणाऱ्या टीमला. रन झाले स्कोर बोर्डवर 57. 7 विकेटचं नुकसान HJA शिपिंग या मॅच मध्ये डोंबिवली ग्रामीण स्टारच्या विरुद्ध. यानंतर होईल टॉस. फ्रेंड्स कुवेत विरुद्ध 11 वॉरियर्स दुबई या दोन टीमच्या कॅप्टनच्या दरम्यान आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये. नेक्स्ट मॅच केतन मात्रे ओव्हर नंबर 7 सध्या प्रगतीपथावर. या मॅच मध्ये गुरविंदर जो पंजाबचा प्लेअर आहे आसिफ शेख च्या बरोबर खेळत असताना या मॅच मध्ये 57 रन स्कोर बोर्डवर. गुरविंदर स्ट्रायकिंग एंडला. शॉर्ट थर्ड मॅन शॉर्ट फाईन लेग 30 या सर्कलच्या आतमध्ये. बॅकवर्ड पॉइंट कव्हर पॉइंट. राऊंड विकेट बॉलिंग ऑफ ड्राईव्ह चांगला केला. गॅप मध्ये बॉल अगदी बंदुकीच्या गोळीसारखा बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणि हा येतोय 10PL चौकार. शी 86 चौकार आतापर्यंत टुर्नामेंट मध्ये लागलेले आपल्याला पाहायला मिळाले. चांगली बॅटिंग इथे करत असताना गुरविंदर पंजाबचा हा प्लेअर आणि पहिलाच बॉल फेस करत असताना एक चांगला ऑफ ड्राईव्ह. ताकद चांगली होती या स्ट्रोक मध्ये. नजाकत आणि टायमिंग तिन्ही गोष्टीचा मिलाफ आणि तेवढाच दमदार 10PL चौकार. या चौकारानंतर टीमची धावसंख्या 61. केतन ओव्हर द विकेट. लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड. इट्स आउट ऑफ द पार्क. यूज इट 6 मॅक्सिमम 10PL सिक्सर. दोन बॉल 10 रन 500चा स्ट्राईक रेट. बॅट्समन गुरविंदर पंजाब पासून शारजा इंटरनॅशनल स्टेडियमचं अंतर या खेळाडूने कापलं आणि काय बॅटिंग करतोय. जलवा बॅटिंगचा दाखवत असताना 67 रन स्कोर बोर्डवर. 7 विकेटचं नुकसान. सात ओव्हरचा खेळ इथे संपला. 67 रन स्कोर बोर्डवर आहेत. 7 विकेट गमावले तर टीम HJA शिपिंगने या मॅच मध्ये डोंबिवली ग्रामीण स्टार या टीमच्या विरोधामध्ये टॉस इथे जिंकला होता. डोंबिवली ग्रामीण स्टारच्या कॅप्टनने फिल्डिंग करण्याचा निर्णय त्याच्या वतीने घेण्यात आला. आसिफ या मॅच मध्ये 16 रन. गुरविंदर पहिले 2 बॉल फेस करत असताना 10 रन 500चा बॅटिंग स्ट्राईक रेट. चांगली बॅटिंग करत असताना लास्ट ओव्हर मध्ये बॉलिंग करण्यासाठी विजय पवार मॅन फ्रॉम आडिवली बॉलिंग करताना दिसेल आसिफ शेखच्या समोर. त्यांनी देखील चांगली सुरुवात केली या मॅच मध्ये. चांगला परफॉर्मन्स देत असताना या शारजा इंटरनॅशनल स्टेडियम मध्ये 10PL सीझन 3 मध्ये फुल टॉस बॉल मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे जाईल. 6 धावांसाठी हा 10PL षटकार. चांगलं टायमिंग. नैसर्गिक एक देणगी असते देवाची आणि त्या देणगीचा पुरेपूर वापर करत असताना बॉटम हँडचा खूप चांगला वापर. मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर षटकार. 10PL सिक्सर ठोकत असताना बॅट्समन आसिफ शेख आणि टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर जाऊन पोहोचली आता
73. आणखीन एक फुलटोस बॉल. आता लॉंग ऑनचं क्षेत्र निवडलंय. फिल्डर आहे डीप मध्ये आणि ते एक वेल जज कॅच. बॅट्समन आउट. आसिफ शेख बॅक टू द पॅव्हिलियन. तो आइए टॉस के लिए फ्रेंड्स कुवैत एंड 11 वॉरियर्स दुबई. हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में आपको दोनों टीमों के कप्तान तैयार रहना है क्योंकि इस सत्र के बाद होगा टॉस हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में, जहां पर जुड़ेंगे वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर. स्ट्राइकिंग एंडला गुरविंदर. चांगली बॉलिंग विजय पवारची. अंपायरकडे हलकीशी अपील. प्रत्युत्तर नाहीये आणि तो एक डॉट बॉल. 3 बॉलचा खेळ अजूनही शिल्लक या मॅच मध्ये. पहिल्या 2 बॉलवर 10 रन टीमसाठी जोडले होते बॅट्समन गुरविंदरने. अविनाश राणा नॉन स्ट्रायकिंग एंडला खेळण्यासाठी तयार. 73 रन 8 विकेटचं नुकसान टीम एच शिपिंग या मॅच मध्ये डोंबिवली ग्रामीण स्टारच्या विरुद्ध. शॉर्ट बॉल एज आणि विकेट कीपरच्या हातात बॉल. बॅट्समन आउट. आणखीन एक यश या ओव्हरमध्ये विजय पवारच्या खात्यामध्ये. आणखीन एक झटका बसतोय टीम एच शिपिंगला या मॅच मध्ये. 73 9 विकेटचं नुकसान झालंय. लास्ट बॅटिंग पेअर आता ग्राउंड मध्ये. पिचिंग झाल्यानंतर थोडासा आतमध्ये येणारा बॉल इन स्विंगर, परंतु बाउन्स चांगला मिळाला विजयच्या या बॉलवर आणि त्याचमुळे बॅट्समन पुल करण्याच्या प्रयत्नामध्ये त्याचा स्ट्रोक फसलाय. खूप चांगलं विकेट कीपिंग इथे करत असताना सुलतान आणि बॅट्समन आउट झालाय. 73 रनवर 9 विकेट गमावले तर टीम एच शिपिंगने या मॅच मध्ये डोंबिवली ग्रामीण स्टारच्या विरुद्ध. फक्त 2 बॉलचा खेळ शिल्लक. या पहिल्या इनिंग मधला ऑल आउटचं संकट असेल टीम एच ग्रुप ऑफ कंपनीजवर. विजय पवार या ओव्हरमध्ये 2 झटके 6 रन. पहिल्याच बॉलवर एक षटकार आला होता मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. बॅट्समन आसिफ शेखच्या बॅटमधून, परंतु त्यानंतर खूप चांगलं कमबॅक केलंय जिशान. नवीन बॅट्समन स्ट्रायकिंग एंडला. आणि इथे आणखीन एक यश मिळता मिळता राहिलंय. विकेट कीपरने केलाय कॅच ड्रॉप. सुलतान खान एक सोप्पा झेल इथे सोडला आणि त्यामुळे रन इथे ऍड होईल. टीमची धावसंख्या 74. लास्ट बॉल या ओव्हर मधला. विजय पवार 7 रन या ओव्हर मध्ये त्याने खर्च केले. स्ट्रायकिंग एंडला येईल बॅट्समन अविनाश राणा. लास्ट बॉल फेस करण्यासाठी लेफ्ट हँडेड बॅट्समन अविनाश राणा. 74 लॉस ऑफ 9 विकेट. शेवटचं षटक आणि या ओव्हरचा असेल हा लास्ट बॉल. बॉलिंग मार्कवर विजय पवार. फुलटॉस बॉल आणि बाउंड्री लाईनच्या बाहेर क्लिअर करून जाईल बॉल. बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे 6 धावांसाठी षटकार. टीमची धावसंख्या 80. 81 रनचं टार्गेट या मॅच मध्ये ठेवण्यात आलं. परंतु आपण आता जाऊया प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये. तिथे होईल टॉस आणि टॉस करण्यासाठी आम्ही आमंत्रित करतोय हरीश पंड्या सरांना. तिथे फ्रेंड्स कुवैत आणि 11 वॉरियर्स दुबई टीमचे कॅप्टन उपस्थित होतील.
Hello. 11 Warriors Dubai captain is requested to join me for the toss. So we welcome Mr. Prajesh from Lama, a young entrepreneur, and I shall request Akhtar Sheikh and Ankur Singh to join me. What a beautiful colors here by our clothing partner OOK. Beautiful colors. They remind me of some ice cream parlor and fantastic atmosphere here. So Prajesh, we would want you to flip the coin. 10 PL is the call by Akhtar, and 10 PL it is. So he has won the toss. Akhtar, toss जीतकर आपने क्या डिसीजन लिया है? फील्ड करेंगे पहले हम लोग टॉस जीत के. कल का मैच तो अच्छा रहा, लेकिन फिर भी एज अ कैप्टन आपको लग रहा है कि आज कोई स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है इस इम्पोर्टेंट मुकाबले में? जी हाँ, सामने वाली टीम भी बहुत अच्छा खेल रही है क्रिकेट और उनका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है. अभी हमको भी ये मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि पहला मैच हम लोग भी जीते, वो टीम भी जीती है. तो अगर ग्रुप को लीड करना है तो ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है. और टॉस जीत के बहुत अच्छा हो गया कि हमको फील्डिंग मिल गई. तो इंशाल्लाह अभी चेस करने की कोशिश करेंगे. और कोई टीम में आपके चेंजेस रहेंगे आज? नहीं नहीं, सेम टीम खेलेंगे हम लोग. बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर. अंकुर भाई, आपकी टीम तो इस वक्त सुर्खियों में है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं. बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, प्लानिंग, कैप्टनशिप, विकेट कीपिंग, सब कुछ सही चल रहा है. ऐसे में फिर भी एक अच्छे क्रिटिक होने के नाते और एक अच्छे क्रिकेटर होने के नाते अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपकी टीम को मेहनत करने की ज़रूरत है? जी हाँ सर, ऑब्वियसली मुझे लगेगा थोड़ा फील्डिंग डिपार्टमेंट और मेहनत कर सकते हैं. जो हाफ चांसेस हैं उसको मतलब कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. और आपकी टीम में आज कोई चेंजेस रहेंगे या सेम विनिंग कॉम्बिनेशन रहेगा? जी नहीं सर, सेम टीम है. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. टॉस जीता 11 वॉरियर्स दुबई ने और फील्डिंग करने का फैसला किया. प्रजेश, वी विल हैव वर्ड विद यू. I'm sure you must be an avid cricket lover as well. So when you come onto the international venue and watch a tennis ball cricket tournament, what do you feel? It's like a good opportunity for all the youngster. Like you can say it's a good platform providing by Mr. Arif to all the youngster who can, the people who is not getting chance on the international level. So we can give the effort to bring them all together and make it happen in a big platform like this. Well, thank you so much for talking to us, Prajesh from Lama. हेलो, थैंक यू हरीश सर. तो यहाँ पर टारगेट होगा 81 रनों का. डोंबिवली ग्रामीण स्टार के सामने एसजे ग्रुप ऑफ कंपनीज इन्होंने रखा हुआ. तो आइए हमारे कमेंट्री बॉक्स में सुनते हैं वॉइस ऑफ इंडिया मिस्टर हरीश सर इनकी आवाज. थैंक यू. इट्स ओवर टू हरीश सर. बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल. 81 रन बनाने हैं 48 गेंदों में. एंड वेल, गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पेट्रोमैन इवेंट प्रेजेंट्स 10 PL Season 3. Title sponsored by Petroman, venue partner Sharjah Cricket Stadium, digital partner eCraft Media, F&B partner Delhi Darbar, support sponsors WBT Teak Timbers, Gulf International, Global Computers and Aryan Hygiene Guard, kitting partner OOK, travel partner Air Arabia, beverages partner Meltwater, live streaming by 7070 and creative partners Tools Marcom Private Limited. What a great performance by tailenders of SJA Shipping. First 5 batsmen contributed 34 and the last 6 players, they contributed roughly 46 runs. So that itself is a very big contribution. And SJA Shipping and Dombivli Grameen Stars, they both are fighting a battle of survival. No margin for error now.
Both the teams will have to give their 100%, and both the openers, Tushar Patil along with Manoj Joshi, known as Pintia. And the first over for SJ Shipping will be bowled by Asif. Azan time. Thank you. So it's play time. Asif to bowl the first over. Coming closer to the stump, and this was a good length ball, but came in a little slow and very easily being worked upon by opening batsman Tushar, wearing number 797. Vivek Shelar celebrating his birthday today, and well, sometimes your birthday leaves good memories for you. Alex Stewart, wicketkeeper of England, was born on 8th April 1963, and coincidentally in Test cricket he scored 8,463 runs. Oh, this is unbelievable. A dead ball being declared, and one more memory associated with Test cricket is Peter Siddle taking hat-trick on his birthday in Test cricket. Wanted to go for a big shot on the onside. The way he positioned himself, Manoj Joshi, not in the optimum position. Half tracker ball, and this was way outside the off stump. And look at umpire Mohammad Rafi. He tries to spread his hands like wings of a bird and ready to launch himself in the sky. Umpire Mohammad Rafi wants to fly like Air Arabia, but he's not able to take off. Two runs. Inside out, very neatly done, and they will take a single. This is what you got to do. Keep finding the gaps.
I remember 9 out of 10 batsmen would look at the fielding position. They will do a survey of where the batsman can see the fielders around the ground and decide where to play and how to play. Worked on the onside towards the short square leg in front of umpire at the striker's end. Jayesh Patil, the fielder. That's where Ricky Ponting once mentioned that I don't survey fielding positions. I survey the gaps between the fielding positions, and that made the great Ricky Ponting the punter. Just trying to go for a reverse sweep, and they will take a single. Pintya Joshi trying to go innovative way. 5 without loss. 81 is the target. Good resistance provided by the lower order of SJ Shipping. Trying to cut the ball, but couldn't read the bounce well. He was bitten in the air and off the wicket. At the end of over number 1, the score line reading at 5. Tushar on 2, Manoj on 2, 1 extra. Now they need another 76 runs of remaining 42 deliveries. Required run rate mounting up. Almost 10.89. 16 teams, 16 dreams, 1 champion. So Krishna Satpute also on the ground enjoying the ambience and company of Tanveer. Arifba is there, Ashik is there, the entire management, Aslam is there. Start of the fresh over and launched it towards Wattishmidon for a single. Good part is the ball was placed towards the right side of the lefty thrower, and that made task easy. Score now 6 without loss. Fresh over has commenced. Gurbinder the bowler, popularly known as I think the third umpire is being called for the bowling action. Aslam Sarguru is the match referee. Aslam Sarguru has been referred about 13-14 times since morning, and I'm sure by the time the day ends, he will complete a century of decision today. Because with technology available, umpires would also want to go ahead and utilize the technology. Third umpire, umpire Carl Liebenberg, was the first third umpire to have given Sachin Tendulkar out long years ago. And umpire Karunakar Kotian along with Mohammad Rafi. They are the officials right now. Umpire Fayaz is resting. Some fluid there for the players, although it's a pleasant atmosphere, but still players perspire a lot, and they would want those liquids and juices to keep them hydrated. 6 without loss, 75 more to win. We welcome all the viewers who are watching this telecast live. It's 4:25 and almost 6 o'clock in India, where people would wind up their day and are on the verge of leaving their offices.
sometimes you feel mundane of working 9 to 6, and that is where cricket like this will provide you the right kind of entertainment. And if you have got a good taste bud, then you can certainly sip in maybe tea, coffee, or have some desserts and watch cricket after office hours. And today is that day, 11th of March, when India-Pakistan match is going to happen for the first time in the history of tennis ball cricket here at Sharjah Cricket Stadium. Score is 6. Dombivli Grameen Stars have put in their best bet in this match as an opening pair, Tushar and Manoj. Very nicely worked on the onside by batsman Tushar. Rotating the strike is the right way. Wicketkeeper is Shahid Sheikh, the skipper. Atish Kedare is at third man. Sunil Chavri is at fine leg. Inside out shot, brilliantly done. And the chase won't be sufficient. And this is a marvelous cover drive for 4. Without loss. "70 runs still required to win the match." Next delivery, trying to shuffle across and making a room for himself, wanted to go for a glance, but misses it. Glance is a shot that requires perfect hand-eye coordination and getting into the optimum position. Jam Ranjit Singh, who represented England, invented that shot of leg glance. Trying to make a room and play towards the whitish third man region. A single was always on the cards. Score now 12 without loss, chasing 81. The team that wins this match will still have a good chance to make it to the quarterfinals, but the team that loses today, the chances will be very less. Again, inside out shot. Jayesh Patil is the safest pair of hands in this team and stops the ball. We come to the end of over number 2, run rate 6.5 per over, 13 without loss, and now 36 balls remaining and 68 runs required to win the match. Gurvinder gave away 8 runs in his first over. This is the panoramic view of Cricket Stadium. There are 99 halogens on one tower. Nine rows of beautiful stadium. We are thankful to Emirates Cricket Board and also ICC for cooperation. Commencement of fresh over, नए ओवर की शुरुआत धीमे से पुश किया. वहां पर
बैट्समैन तुषार ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर 14। हमारे स्कोरर नादिर, इनके भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। पंकज के भी हम शुक्रगुजार हैं जो डिजिटल स्कोरिंग कर रहे हैं। इस बार उठा दिया। अब देखिए, इसको कहते हैं कद्दावर शॉट। दिल मचल उठे और अंपायर मोहम्मद रफी भी वहां पर उनका बंगड़ा अंदाज। क्या बात है, बिल्कुल भंगड़ा अंदाज था। असी ते भंगड़ा पावा ते गिद्धा पावा, उस तरह का स्टाइल। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20। इस बार बॉल नीचे रही, वहां पर विकेट कीपर और लॉन्ग स्टॉप से गुजरती हुई मैदान के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। और ये चक्की पिसिंग एंड पिसिंग मोमेंट। वो आगे बढ़ता हुआ 24। बहुत अच्छी शुरुआत यहां पर मनोज जोशी द्वारा। पिंटिया जो एक बड़ा प्लेयर है थाने डिस्ट्रिक्ट में। "24 विदाउट लॉस, चेजिंग 81", 57 रनों की दरकार। आसिफ की अगली गेंद इस बार टप्पा खाते ही बहुत नजाकत के साथ कमर को झुकाकर खेल दिया था वाइडिश एक्स्ट्रा कवर की तरफ। 2 रन दौड़कर पूरे किए। क्या बढ़िया केसरी रंग है, और जिस तरह से दौड़ रहे हैं, मैच जीतकर पूरा केसरिया फैला देंगे ऐसा लग रहा है। 26। शॉर्ट और वाइड बॉल 27। जब भी तो शाहरुख खान का गाना याद आ जाता है, दुनिया भुला के तुझसे मिला हूं, निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तू मोहे गेरुआ। इस बार शॉर्ट आर्म पुल बिल्कुल कंधों के करीब से खेला था और जयेश पाटिल वहां पर मिड विकेट पर गेंद को उठाते हुए अच्छा थ्रो शाहिद तक पहुंचा। 1 रन और जोड़ दिया हमारे स्कोरर पंकज और नादिर ने अपने स्कोर में, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन। 28 विदाउट लॉस, 81 रनों का लक्ष्य है। बड़ी शिद्दत के साथ स्कोर का पीछा। इस बार बड़ा शॉट खेलने का मंसूबा जरूर था, लेकिन बाई के रूप में अंपायर मोहम्मद रफी का भी बाई दिखाने का एक अलग अंदाज है। उनकी उंगलियों में झंझनाहट सी आ जाती है जब बाई दिखाते हैं। 29 रन। मनोज 21 पर और तुषार 5 पर। अब गेंदें बची है 30 और रन चाहिए 52। 30 बॉल्स 52 टू विन। आसिफ ने 2 ओवर पूरे किए जिसमें 20 रन खर्च किए। और अब बॉलिंग में तब्दीली, नए ओवर की शुरुआत। अविनाश राणा। डोंबिवली ग्रामीण स्टार्स के कई समर्थक आप देख रहे हैं स्टैंड में। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज तुषार। सबसे अच्छी बात डोंबिवली ग्रामीण स्टार्स के लिए कि उन्होंने कोई विकेट नहीं खोया है 3 ओवर तक। शारजा क्लब एंड से बॉलिंग की शुरुआत। टप्पा खाते ही क्या खूबसूरत अंदाज में वो कवर ड्राइव खेला है। जयेश पाटिल का थ्रो पहुंचे उसके पहले 2 रन पूरे करते हुए तुषार।
और तुषार की ये बल्लेबाजी को देखकर वाकई में पूरे डोंबिवली में और ठाणा में लोग मन में एक ही चीज कह रहे होंगे, तुषार ज़ाला होशियार। जिस तरह की वो गैप निकाल रहे हैं, इस बार ऑन साइड पर प्लेस कर दिया और बड़े आराम से दूसरा रन। हर रन पर बधाई और स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जाकर पहुंचा है 33 रन्स। शॉर्टर वाइड बॉल काटा था गली में और गली में रोका गया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन्स। इक्यासी रन बनाने हैं, 47 रन और चाहिए। 27 गेंदों में गेंद और रनों के बीच में फर्क केवल 20 का है और 2 से 3 अच्छे शॉट बॉल टू बॉल पर ले आएंगे। इस बार ड्राइव किया अविनाश की इस गेंद को, 1 रन पूरा किया। दूसरे की दौड़ और तेज कदम भागते हुए दोनों बल्लेबाज। अब ऐसा लग रहा है दोनों बल्लेबाजों ने अपने जूते में गोंद चिपका दी है। 36 रन बगैर कोई नुकसान के डोंबिवली ग्रामीण स्टार कल के और आज के प्रदर्शन में 360 डिग्री का चेंज दिखाई दे रहा है। मनोज जोशी रिवर्स स्वीप खेलना चाह रहे थे, बीट हुए। 36, 45 रन और चाहिए, चौथा ओवर। और यहां पर यॉर्कर पर बोल्ड आउट कर दिया मनोज जोशी को, पहली सफलता और यह सफलता का जश्न। विकेट गिरता हुआ पहला, भागीदारी समाप्त होती हुई और 36 पर गिरने वाला यह पहला विकेट। और यहां पर 4 ओवर की समाप्ति, 36 पर 1। और आइए लेते हैं स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, जहां पर दोनों टीमों की स्ट्रेटेजी बनेगी, योजना बनेगी और फिर उस योजना को कार्यान्वित करने का प्रयास किया जाएगा। और 2.5 मिनट का ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। और 5वें ओवर की जब शुरुआत होगी तो माइक्रोफोन पर आपका साथ निभाने के लिए आएंगे मेरे काबिल दोस्त उसामा।
आरिफ खान है मौका लाया, गलियों से है तुझे बुलाया, ग्राउंड में है तुझे खिलाया, चल अब तू भी खेल दिखा दे, अपने नाम का सिक्का जमा दे, छक्के चौके आज लगा दे, मैदान में तू धूम मचा दे, देखेंगे अब तुमको सारे, वसीम भाई भी साथ हमारे, भाई भी साथ हमारे। कर ले आज तैयारी, होगी ये शेर सवारी, अब टन पे हल्की बारी, जो होगी सब पे भारी। कर ले आज तैयारी, होगी ये शेर सवारी, अब टन पे हल्की बारी। हल्की सी अपील, वापस आए हैं, लेग बाय अंपायर का इशारा, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद वापस आए हैं यहां पर हम। डोंबिवली ग्रामीण स्टार्स बमुकाबला होता हुआ एसजे शिपिंग के बीच। बहुत ही बढ़िया साझेदारी अभी तक बनाते हुए दोनों ही बल्लेबाज। सलामी बल्लेबाज थे तुषार और मनोज, लेकिन वहां पर एक बेहतरीन पारी खेलकर वापस लौटना पड़ा मनोज को। क्लीन बोल्ड हुए थे राणा की गेंद पर। बढ़िया गेंद, लंबा शॉट तो लगाना चाहते थे लेकिन वहां पर खेल दिया एक रन के लिए। जीशान अपने खाते का पहला और टीम का 5वां ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स छोर से गेंदबाजी का भार संभालेंगे। ये कड़ा मुकाबला चलता हुआ दोनों ही टीम के बीच। डोंबिवली ग्रामीण स्टार्स बनाम एसजे शिपिंग ऑफ स्टंप के काफी बाहर और तेज गति की हुई गेंद। घुमाया जरूर था लेकिन बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया गेंद के साथ और सीधे जा पहुंची विकेट कीपर के हाथों। बढ़िया गेंद, बहुत ही उम्दा क्रिकेट यहां पर देखने को मिल रहा है। देश विदेश से दिग्गज आए हुए यहां पर। बढ़िया गेंद, बाहरी किनारा और बिल्ली बॉर्डन की उठी उंगली, जाना पड़ेगा बैट्समैन को बाहर। बहुत ही बढ़िया और एक बड़ा झटका लगता हुआ यहां डोंबिवली ग्रामीण स्टार्स को। तुषार के रूप में सलामी बल्लेबाज दोनों ही पवेलियन में मौजूद इस समय। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी जीशान द्वारा, थोड़े से परेशान किया शुरुआत में तुषार को और आखिर में चूम कर निकलती हुई बल्ले को गेंद, और वहां पर कोई गलती नहीं की शाहिद शेख ने। बहुत ही बढ़िया कैच और वापस पवेलियन को भेजा तुषार को। सलामी बल्लेबाज दोनों ही वापस डगआउट में, तुषार और मनोज। तुषार को रिप्लेस करने के लिए आए हैं नए बल्लेबाज विक्रांत पाटिल। इक्यासी रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई डोंबिवली ग्रामीण स्टार्स आते ही ढीली कलाइयों के साथ ढकेला उसे। शॉर्ट कवर्स के क्षेत्र में 1 रन के साथ अपना खाता खोला विक्रांत ने और इसी 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 39। आखिरी गेंद इस ओवर की अभी भी बाकी। यह बहुत ही कड़ा मुकाबला होने वाला है इन दोनों ही पक्षों के बीच। घुमाया जोर से लेकिन फील्डर मौजूद है मिड विकेट के क्षेत्र में। 1 रन जरूर मिलेगा, बल्लेबाज को देखना होगा दूसरे की कोशिश करते हैं या नहीं। जी नहीं, इसी 1 रन के साथ ओवर होगा समाप्त। सफल ओवर, केवल 4 रन आए हैं इस ओवर से और 1 विकेट, एक सफलता भी मिलती हुई।
5वें ओवर के समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 40, 2 विकेट के नुकसान पर। 41 रनों की और दरकार यहां से डोंबिवली ग्रामीण स्टार्स को, यदि अपनी विजय का झंडा वो गाड़ना चाहते हो इस मैच पर, तो 41 रन और बनाने होंगे केवल 18 गेंदों में, और ये कारनामा अंजाम देना होगा इन दो बल्लेबाजों को जो क्रीज पर मौजूद है, मयूर और विक्रांत। एक साझेदारी बनानी होगी, आसान नहीं है 18 गेंदों में 41 रन बनाना, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। यदि आप ठान लें तो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। जी हां, अविनाश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। बढ़िया गेंद और सीधे अंदरूनी किनारा लगकर पैड पर लगी। 1 रन जरूर मिलेगा इस मौके पर, लेकिन 1 रन 2 रन से यहां पर होने वाला कुछ नहीं है। चाहिए कि लंबे शॉट्स लगाएं। बाउंड्री यदि आती है तो दबाव वापस से बना सकते हैं गेंदबाजों पर, और जब तक आप गेंदबाज पर दबाव नहीं बना पाए तब तक गेंदबाज हावी होते जाएंगे आप पर। एक अच्छी शुरुआत जरूर मिली थी वहां पर डोंबिवली ग्रामीण स्टार्स को। तुषार और मनोज ने बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप, सलामी, साझेदारी बनाई थी अपनी टीम के लिए। 23 बनाकर वापस लौटे मनोज, 10 रन बनाए थे तुषार ने। अब जिम्मेदारी आती हुई मयूर और विक्रांत के कांधों पर। घुमाकर मारना चाहते थे, ऑफ स्टंप के काफी बाहर गई गेंद और अंपायर ने उठाए अपने हाथ। वाइड के रूप में एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ डोंबिवली ग्रामीण स्टार्स को। अच्छी गेंद, अच्छी तरीके से खेला उसे स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। फील्डर वहां जरूर है, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। विक्रांत पाटिल, मयूर दतिलकर नए बल्लेबाज है दोनों ही, लेकिन एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए रन बनाने के लिए पूरा दमखम इस मैच में डाल रहे हैं। अच्छी गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, छोटी गेंद, गति के साथ फेंकी हुई। जैसे कि मैं हर बार कहता हूं कि गति के साथ यदि आप छोटी गेंद करेंगे तो वहां पर चांसेस आपके ज्यादा होते हैं विकेट लेने के। यदि गति ना हो, यदि फिर आप छोटी गेंद करते हैं तब चांसेस ज्यादा होते हैं वहां पर बाउंड्री लगने की। और इसी अच्छी गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं अविनाश। बढ़िया गेंद, ऊपरी किनारा, विकेट कीपर नीचे मौजूद और नहीं करेंगे वो कोई गलती। एक और झटका लगता हुआ, इस बार लौटना होगा विक्रांत पाटिल को। तीसरा झटका लगता हुआ, बड़ी मछली हाथ लगी है SJA शिपिंग्स की टीम को। ये देखिए किस तरीके से लंबा शॉट लगाने का प्रयास था, हवा में जरूर गई गेंद लेकिन जा नहीं पहुंची बाउंड्री के बाहर, क्योंकि आ गए थे नीचे विकेट कीपर। विक्रांत पाटिल को रिप्लेस करने के लिए आए हैं केतन महात्रे। एक और लंबा शॉट, एक बार फिर से विकेट कीपर ने कहा ये कैच होगी मेरी। जी हां, दस्तानों में भर लिया है उसको
एक और झटका लगता हुआ, ये झटका होगा नंबर 4। वापस लौटेंगे मयूर दतिलकर, जो कि लग रहे थे कुछ हद तक सेट। जिस तरीके की मैं बात कर रहा था, यदि आप शॉर्ट पिच गेंद करते हैं, छोटी गेंद करते हैं गति के साथ, तब वहां पर ज्यादा चांसेस होते हैं विकेट लेने के, और यही हुआ। गति के साथ फेंकी हुई गेंद, छोटी गेंद थी, पुल शॉट लगाने का प्रयास, संपर्क सही नहीं हुआ और आए नीचे विकेट कीपर शाहिद शेख। अब मौजूद हैं दोनों ही नए बल्लेबाज विजय पवार और केतन महात्रे, लेकिन ये देखना होगा कि ये हैट्रिक होती है या नहीं। अभी तक किसी ने ली नहीं है, लेकिन यहां पर अविनाश के पास मौका। बहुत ही बढ़िया गेंद, विकेटों के बाजू से निकलती हुई, भाग्यशाली रहे केतन महात्रे। विकेट से जा नहीं टकराई गेंद, वरना ये हैट्रिक होती और बखूबी बहुत ही बढ़िया सफल ओवर साबित हुआ है एसजे शिपिंग्स के लिए। केवल दिए हैं 4 और लिए हैं 2 सफलताएं अविनाश ने। छठा ओवर हुआ समाप्त, 44 पे 4 डोंबिवली ग्रामीण स्टार्स। जिशान आए हैं अपने खाते का दूसरा और टीम का 7वां ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स छोड़ से गेंदबाजी करेंगे। उनका सामना करेंगे विजय पवार। ऑफ स्टंप के काफी बाहर फुलर लेंथ गेंद थी, छेड़खानी करने का प्रयास जरूर था, लेकिन डॉट बॉल विजय पवार। विजय पवार के नाम में ही विजय है और उनके नाम में ही पावर है। देखना होगा ये पावर यहां पर लगकर विजय मिलती है या नहीं। ऑफ स्टंप के काफी बाहर, निश्चित रूप से अंपायर ने अपनी बाहें खोलकर बताया है कि भैया ये है वाइड और एक एक्स्ट्रा रन मिलेगा डोंबिवली ग्रामीण स्टार्स को। हवा में गेंद, एक बार फिर शाहिद आए हैं नीचे। आज मानो शारजा स्टेडियम गूंज उठा है शाहिद की पुकार से। जहां देखो वहां पर मौजूद है शाहिद। 3 कैचेस अभी तक ले चुके हैं, 4 कैचेस अभी तक ले चुके हैं शाहिद। विकेट कीपर कमांडर एसजे शिपिंग्स के। नए बल्लेबाज आए हैं साई रिप्लेस करने के लिए। विजय पवार को रिप्लेस करने के लिए आए हैं साई। बढ़िया गेंद बुलेट की तरह निकली, गई रॉकेट की तरह। 4 रन और मिलेंगे बल्लेबाज को। बहुत ही कड़क शॉट यहां पर साई के बल्ले से निकलता हुआ।
लंबे कद के खिलाड़ी साई शेलार 4 रन आते ही जड़ दिए हैं और अपना खाता खोला है 4 रन के साथ। उम्मीदें अभी भी बनी हुई डोंबिवली ग्रामीण स्टार्स की, क्योंकि वहां पर देख सकते हैं साई को, ये कुछ अनोखे बल्ले को लेकर आए हैं साई। छोटी गेंद, इस बार वाइड करार दिया जाएगा अंपायर की ओर से। जी हां, एक और अतिरिक्त रन जुड़ेगा डोंबिवली ग्रामीण स्टार्स के स्कोर कार्ड में। अब बनाने हैं केवल 30, 8 गेंदें शेष बाकी। बढ़िया गेंद और ये जाकर सीधे बात करेगी आसमान से। बहुत ही लंबा छक्का डोंबिवली ग्रामीण स्टार्स को मिलता हुआ। साई शेलार जब तक क्रीज पर हैं तब तक उम्मीदें बरकरार रहेंगी डोंबिवली ग्रामीण स्टार्स की। ये देखिए किस तरीके से छक्का जड़ा है और जिस हिसाब का इनका आउटफिट लग रहा है यहां पर वो किसी योद्धा से कम नहीं। जिस तरीके से उन्होंने अपने हाथों को ढका हुआ है वाइड दस्तानों से और जिस हिसाब का उनका बल्ला हाथ में लग रहा है, ये एक योद्धा ही लग रहे हैं यहां पर डोंबिवली ग्रामीण स्टार्स के। 5वां मैच आज का आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरे दिन का शहंशाह वॉरियर्स खेलेंगी फ्रेंड्स कुवैत के साथ। अच्छी गेंद, फिर एक बार बड़ा शॉट लगाने का प्रयास जरूर था, लेकिन चूंकि बल्लेबाज इस बार साई शेलार, ओवर हुआ समाप्त। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 57, 5 विकेट के नुकसान पर। शहंशाह का नहीं है मैच, अभी शहंशाह का आज नहीं है मैच। मैं लेके आऊँ, मेरे पास है शेड्यूल लगा देता हूँ सबको। सही है ना, सही है। Vishwanath comes back into the attack. The captain has shown faith in Vishwanath. 6 balls, 24 runs required for Dombivli Gramin Stars to win this game. Beautiful delivery, got a thick outside edge, and the ball is just traveling towards the short third man area. Fielder out there, just 1 run to be taken on that occasion. That will bring up the warrior of Dombivli Gramin Stars, the tall man in the squad, Sai Shelar, who already got a big hit over to the mid-wicket area in the previous over. He's back on strike. Can he make it happen? Can he make it count? 23 runs required in 5 legal deliveries for Dombivli Gramin Stars to clinch the victory right here at Sharjah International Cricket Stadium. This time, there's a change of pace, and the trick has been done by Vishwanath. A smart move though
from him. Because this is what happens exactly when you are into the slog over, when you require runs. Down the leg stump this time. Chance of a run out, but back into the crease. We'll have to wait for the signal from the umpire. Leg by, signal by the umpire. 3 balls, 22. Now for Dombivli Gramin Stars. The curtains are actually coming down, but you never know what's gonna happen in the coming deliveries, because you cannot predict the game of cricket. Anything is possible at any point of moment. That's for the reason this game has a name of cricket. 3 balls, 22. Ketan Mahatre on strike. Full toss delivery this time, played it over to the extra cover area, just opened the face of the bat and lofted it over. 4 more runs added to the scorecard. $18 runs required now from 2 legal deliveries. Will that be counted again? Will there be a twist in the tale? Will there be a twist in the story? We'll have to wait and watch. Nicely ball this time, a short pitch length delivery, wanted to pull it over, but just found the inside edge and the ball has just rolled down towards the short fine leg area. No run conceded on that occasion, and it's almost like done for Dombivli Gramin Stars. 18 runs required with just 1 legal delivery. Ketan Mahatre is on strike. Vishwanath charging up. Beautiful shot high up in the sky. Fielder coming underneath it, but he can only watch it over. But that was a magnificent effort. We'll have to wait for the call. Yes, indeed, 6 more runs added to the scorecard. Though he finished it off in style, but can't make it happen for Dombivli Gramin Stars. Tough luck for them today at Sharjah International Stadium. And huge congratulations to the entire team of SJA Shipping for an outstanding performance here at Sharjah International Cricket Stadium. And I will be turning down the mic to the very well-known, a famous voice of India. And that would be the post-match presentation ceremony. Will be taken care by the voice of India, Mr. Harish Pandya.